عمر شیما اور دوستوں، جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر مقتدر خان صاحب. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ. شکریہ خمر صاحب. آپ کے سننے والوں کو میرا سلام، نمستے، ست سری اکال، ونکم. بہت شکریہ سر، تھینک یو. ڈاکٹر صاحب، آج آپ سے بات کرنی ہے ایک دو بڑے امپورٹنٹ، دو بلکہ جو ہے جسے کہنا بڑے گلوبل ایشو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کل میں دیکھ رہا تھا واشنگٹن پوسٹ میں ایک ایڈیٹوریل بورڈ نے ایک اوپینین لکھا کہ ویئر آر آل دی یو ایس امبیسڈرس. 40 کے قریب جو امریکہ کے سفیر ہے دنیا میں نہیں پہنچے بیکاز ان کی جو ہے وہ کانگریس سے کنفرمیشنز نہیں ہو رہی. اور اس میں انڈیا کا بھی ذکر آیا کہ انڈیا جو ہے وہ وہاں پہ بھی جو کہ بڑا کرٹیکل پارٹنر ہے امریکہ کا، وہاں پہ بھی جو ہے وہ امریکی سفیر نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ بائیڈن صاحب کی فیلئر ہے کانگریس میں یہ کنسنسس نہ بلڈ کر پانا، اور اس کا امریکن فارن پالیسی کو کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ اینڈ کائنڈلی یہ انڈیا امریکہ تعلقات پہ بھی ضرور بات کیجیے گا کہ اس سے کوئی افیکٹ پڑے گا یا کہ چیزیں جو ہیں وہ نارمل چل رہی ہیں آلریڈی ایون اف دیر از نو امبیسڈر. تو پہلے تو دو تین چیزیں یہ ہیں کہ ایک تو کہ اٹ از ناٹ کہ امبیسڈر نہیں ہے، دیر از نو سینٹ کنفرمڈ امبیسڈر. سو فار ایگزامپل اگر آپ انڈیا کو لے لیں، ایلزابتھ جونز از دا امبیسڈر رائٹ ناؤ، بٹ شی از انٹرم امبیسڈر ہے، شی از ناٹ کنفرم بائی دا یو ایس سینٹ. تو جو امریکہ کی کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو ڈویژن آف پاور ہے، سینٹ گیٹس ٹو confirm the appointments made by the president. جیسا کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہو یا ایمبیسڈرز ہو، ایون سینئر ملٹری آفیشلز ہو، ان کا کنفرمیشن یو ایس سینٹ کرتا ہے. تو ابھی تک کنفرمیشن نہیں ہوئے ہیں وہ 40 ایمبیسڈرز کے، اور سم آف دیم آر ویری امپورٹنٹ کنٹریز. اس میں رشیا بھی شامل ہے، انڈیا بھی شامل ہے، برازیل بھی شامل ہے، اٹلی بھی شامل ہے. سو دیز آر G7 G20 کنٹریز کی چیز ہے. ابھی مجھے لگتا ہے کہ جو یو ایس ایمبیسڈر ٹو رشیا جو نامنی ہے بائیڈن کے، ان کی ہیئرنگ ہو گئی ہے. تو جہاں تک کہ انڈیا کا سوال ہے، جو بائیڈن نے ایرک گارسیٹی جو لاس اینجلس کے میئر ہیں ان کو 2021 میں نامینیٹ کیا تھا ایز ایمبیسڈر ٹو انڈیا. لیکن اب دیکھیں، ایرک گارسیٹی از اے ویری امپورٹنٹ انفلوئنشل پولیٹیشین ہے امریکہ میں، اور وہ جس کمیونٹی سے آتے ہیں اس کمیونٹی کا بھی اٹ از این امپورٹنٹ سپورٹ چاہیے بائیڈن کو. تو لیکن ان کے جو ایک سینئر آفیشل ہے، ہی واز اکیوزڈ آف سیکشل ہراسمنٹ. تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ تو ایک ریپبلکن سینیٹر نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ ایرک گارسیٹی کو کب پتا چلا کہ his subordinate was indulging in sexual harassment اور did he tolerate it. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کو جب جیسے پتا چلایا did he act or did he not. تو وہ ایک مسئلے کو لے کر تھوڑے کافی وقت تک ایک ریپبلکن سینیٹر نے ہولڈ لگایا ہوا تھا ان کی ہیئرنگ پر، یعنی کنفرمیشن ہیئرنگ ہی نہیں ہوئی ان کی ابھی تک. تقریباً اب 2.5 سال سے زیادہ ہو گیا ہے جو بائیڈن کی پریسیڈنسی کو، 21 ہو گیا ہے، 22 چل رہا ہے. اب دیکھتے دیکھتے 2 سال ہو جائیں گے نا ان کو بھی خود پریسیڈنٹ بن کر. تو اب چکر یہ تھا کہ نومبر کے الیکشن سے پہلے یہ طے کیا گیا تھا کہ they will at least give him a hearing and a vote، کیونکہ میجورٹی میں تھی ڈیموکریٹس، اور ڈیموکریٹس کو یہ ڈر تھا کہ کہیں اگر ڈیموکریٹ سینیٹ ہار جاتے ہیں then it will become even more difficult to confirm their nominees. لیکن خوش قسمتی ہے بائیڈن کے کہ ڈیموکریٹس have held on to the Senate up to 51 سے بھی زیادہ ان کے پاس ووٹس ہیں سینیٹ میں، اگر وائس پریسیڈنٹ کو بھی ملاتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے وجہ سے اور دیری ہو جائے گی. میں نے سینیٹر کرسٹوفر کون جو سینیٹ فارن ریلیشنز کمیٹی کے ممبر ہیں اور کافی سینئر ممبر ہیں، ان سے یہ سوال اسٹریٹ اپ پوچھا تھا میرے شو پر کہ وائی از دیر نو کنفرمڈ ایمبیسڈر. تو انہوں نے کہا کہ یہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن اور ہمارے لیے شرمندگی کی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں، میں ان کے الفاظ دہرا رہا ہوں کہ انڈیا یو ایس ریلیشنز آر دا موسٹ کانسیکوینشل ریلیشنز. اگر سب سے زیادہ با اثر تعلقات ہیں
अगर ये सबसे इम्पोर्टेंट ताल्लुकात हैं तो नॉट टू हैव ए सेनेट कंफर्म्ड एम्बेसडर, ये शर्मिंदगी की बात है बहुत बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और यूएस के लिए भी. इट बेसिकली सेज कि गवर्नमेंट की बेसिक चीजें नहीं हो रही हैं. आई मीन एम्बेसडर अपॉइंट करें तो फिर डिप्लोमेसी चलेगी ना. तो अब दूसरी तरफ से अगर आप देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जो इम्पोर्टेंट पोजीशंस पे जो लोग अपॉइंट होते हैं, अगर उनके पास सेनेट कॉन्फर्मेशन हो तो दे हैव एन अथॉरिटी विथ विच दे कैन टॉक. लेकिन उनके बदले में जो यूजुअली अपॉइंट होते हैं वो करियर डिप्लोमेट्स होते हैं. जिस तरह से एलिजाबेथ जोन्स है, शी इज अ करियर डिप्लोमेट बट शी कम्स फ्रॉम समवन हु हैज बीन एडवोकेटिंग फॉर द यूक्रेन वॉर. तो मुझे लगता है कि इंडिया यूएस रिलेशंस के लिए हैविंग एलिजाबेथ जोन्स इन दिल्ली इज नॉट अ गुड थिंग अनलेस शी इज एबल टू कंप्लीटली चेंज हर पोजीशन इन दिल्ली. लेकिन अगर दिल्ली में बैठ के वो यूक्रेन के लिए जिहाद करते रहेगी तो इट इज नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर यूएस इंडिया रिलेशंस. और आपको पता है कि स्टेट डिपार्टमेंट में टेन्योर सिस्टम होता है. सो शी इज प्रोबब्ली अ टेन्योर्ड ऑफिसर, व्हिच मींस शी माइट बी विलिंग टू गो अगेंस्ट the government's policy based on her own values. इस वजह से तो टेन्योर देते हैं स्टाफ को. तो अगर वो पूरी तरह से इंडिविजुअली कन्विंस्ड है कि यूक्रेन की जंग इज मोर इम्पोर्टेंट और इंडिया को चाहिए कि सपोर्ट करे यूक्रेन को, तो इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स बिटवीन यूएस एंड इंडिया इफ शी इज देयर. मैंने ये पहले बार भी कहा था एंड आई स्टिल बिलीव दैट शी शुड नॉट हैव बीन सेंट टू दिल्ली. बट ये एरिक गार्सेटी का अभी तक नहीं हुआ. अब देखें, अब वी आर इन दिसंबर, उसकी हियरिंग भी स्केड्यूल नहीं हुई है. सुनने में आता है कि एरिक गार्सेटी के माँ बाप ने लॉबी को हायर की है. 30-40 हजार डॉलर खर्च करके एक लॉबिंग एजेंसी को हायर किया अपने बेटे के लिए लॉबिंग करने के लिए, ताकि वो सेनेटर्स को पुश करे कि एटलीस्ट वोट ले ले अप एंड डाउन. और अगर वोट लेते हैं तो ही विल बी कंफर्म बिकॉज द डेमोक्रेट्स एक बार वोट पे आएंगे तो दे आर नॉट गोइंग टू वोट अगेंस्ट देयर ओन प्रेसिडेंट्स नॉमिनी. तो द डेमोक्रेट्स, इससे साफ जाहिर हो रहा कि डेमोक्रेट्स के वोट्स नहीं है इसके पास. तो द प्रेसिडेंट बाइडेन का जो नॉमिनी है he does not enjoy the support of all Democrats. इसलिए शूमर वगैरह they are not able to host a confirmation hearing. सेनेट का वोट ले लें, अप एंड डाउन वोट कहते हैं कि इनको बनाए या ना बनाए एम्बेसडर. बट यकीनन ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की इनकॉम्पिटेंस है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है ये. इट्स अ स्मॉल फेलियर बट इट इज आल्सो सेंड्स अ सिग्नल टू इंडिया कि भाई हाउ इम्पोर्टेंट इंडिया इज. अगर आप कह रहे हैं कि इंडिया इज सो इम्पोर्टेंट तो बाइडेन पर्सनली फोन उठा के कहते हैं कि आई वांट दिस वोट टुमारो. अभी तो किया ना उन्होंने. अभी यहाँ पे एक स्ट्राइक होने वाली थी रेलवेज की. यस, उन्होंने जबरदस्ती वोट करवा दिया दोनों तरफ, कांग्रेस में भी इधर उधर, टू गेट द बिल पास्ड बिकॉज वरना इकोनॉमी पे असर हो जाता. सो ही इज नॉट शोइंग द सेम डिग्री ऑफ अर्जेंसी ऑन दिस पर्टिकुलर इश्यू बिकॉज मुझे लगता है कि ही इज कमिटेड टू दिस कैंडिडेट और विड्रॉ नहीं कर सक रहे वो पॉलिटिकली उस कैंडिडेट को. तो या तो द सेनेट शुड, या तो द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन शुड विड्रॉ हिज नेम एंड पुट अप ए न्यू नेम और दे शुड टेक अ वोट ऑन हिम. बिल्कुल सही कह रहे हैं. ये तो एक चैलेंज है और इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में भी, लेकिन ओवरऑल लार्जली क्योंकि ताल्लुकात अच्छे हैं तो शायद अमेरिकन भी समझते हैं कि चलो कोई बात नहीं, खैर है. लेकिन एक चैलेंज तो है, लेकिन प्राइमरीली ये एक डोमेस्टिक इशू है अमेरिका के लिए, जिसको शायद बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे. डॉक्टर साहब जी कुछ कहना चाहते हैं? मैं जयशंकर साहब की तारीफ बहुत इसलिए करता हूँ उनके एज अ फॉरेन मिनिस्टर की, बिकॉज ही केम अप एज अ करियर डिप्लोमेट. यस, और वो फॉरेन सेक्रेटरी बन गए थे. ही गॉट द हाईएस्ट पोजीशन दैट यू कैन गेट एज अ डिप्लोमेट, जो एक स्टेप बिलो थी. सो हिज एक्सपीरियंस, हिज नॉलेज, वो 30-40 साल की एक्सपीरियंस लेके आते हैं. So in some ways, I think America's national interests are better served by career diplomats than political appointees, जो prima donnas भी हो सकते हैं, right? वहाँ पे वो मिसाल के तौर पे मेरे पहचान के एक साहब थे जिन्होंने
बिल क्लिंटन को बहुत सारे पैसे दे दिए थे कैंपेन में, तो उनको फिजी का एम्बेसडर बना दिया, तफरी पे चले गए वो 2 साल के लिए. So it's like a reward, but he was not into diplomacy, he was not into international relations, वो businessman थे. तो इस तरह भी कई लोगों को अपॉइंटमेंट्स होते हैं. वो शेवरॉन के सीईओ को बना दिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड ट्रंप ने. सो आई डोंट थिंक दीज पीपल मेक गुड एम्बेसडर्स. आई डोंट थिंक दे पूरी तरह से इनको नॉलेज होती है फॉरेन पॉलिसी की. सो इन ए वे वो जो 40 मुल्क हैं जहां पर इंटरिम एम्बेसडर्स हैं, जो करियर डिप्लोमेट्स हैं, I have a feeling that they are probably doing a better job for America than the political appointees जो शायद उतना competent ना हो इस फील्ड में. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि चाइना के जो सदर हैं वो सऊदी अरब पहुँच गए हैं. आप कैसे देखते हैं चाइनीज सदर को सऊदी अरब? सुनने में आ रहा है कि उनको जो वेलकम किया जा रहा है वो उसी तरह किया जा रहा है जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप को किया गया था, और बाइडेन साहब को जो है वो प्रोटोकॉल, वो चीज़ें नहीं मिली और वो हाथ झाड़ के वापस आ गए. तो जो, और ये भी कहा जा रहा है कि 2 अथॉरिटेरियन लीडर जो हैं वो अब एक नया जो है वो मुस्तकबिल लिखने जा रहे हैं. सो हाउ डू यू सी जो शी जिनपिंग का जो सऊदी अरब का दौरा है, इससे क्या प्रॉस्पेक्ट निकलते हैं, व्हाट इज अ मैसेज फॉर अमेरिका एज वेल? Well, they're not just authoritarian leaders, they are leaders for life. बस कोई रिटायरमेंट का प्लान नहीं है उनका, ना एग्जिट. हमको तो पता है कि शायद 2025 जनवरी में बाइडेन ना हो यहाँ पर, लेकिन ये दोनों तो रहेंगे ना. और ऊपर से एमबीएस तो बेचारे क्या 36-37 साल के, 40 के भी नहीं हुए अभी. सो ही कुड बी देयर फॉर अनदर 45 years. यानी ये पूरी सेंचुरी वो बन सकते हैं. कि देखिए, इट इज बट नेचुरल कि दे विल कम टुगेदर. देयर आर दोनों मुल्कों की जरूरतें हैं. मैं चेक कर रहा था, इन सऊदी चाइना का जो ट्रेड है म्यूचुअल, वो सऊदी यूएस से डबल है, which is itself says that they are, at least economically, they are already closer than anything else. China के लिए सऊदी ऑयल इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ ऑयल अभी भी. मतलब रशिया से वो डिस्काउंट पे खरीदने के बावजूद चाइना इज द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ रशियन ऑयल. बट चाइना का जो सबसे ज्यादा तेल आता है, तकरीबन 17 से 18% वो सऊदी अरब से आता है. So they are already very attached in that sense. दूसरी चीज ये है कि अभी पिछले, जब से ये यमन की जंग के बारे में अमेरिका में नेगेटिव पब्लिसिटी हुई है सऊदी अरेबिया की, फिर जमाल खशोगी के कत्ल के बारे में भी जब से नेगेटिव पब्लिसिटी हुई एमबीएस की, यूएस सेनेट इज अनविलिंग टू सेल वेपन्स, खासतौर से सीरियस क्वालिटी ऑफ वेपन्स टू सऊदी अरेबिया. ये ईरान को लेकर कोऑपरेशन तो हो रहा है कि ईरान के खिलाफ दे आर वर्किंग टुगेदर बिकॉज इजराइल इज आल्सो देयर. तो सऊदी अरेबिया के लिए नहीं, लेकिन इजराइल के लिए अमेरिका इज कोऑपरेटिंग विद सऊदी अरेबिया. लेकिन सऊदी अरेबिया को जरूरत है हथियार की. इट वांट्स टू बाय मोर वेपन्स, इट वांट्स टू फील सिक्योर. तो इसलिए मुझे लगता है कि सऊदी अरेबिया इज गोइंग टू टर्न मोर एंड मोर टुवर्ड्स चाइना, क्योंकि जब चाइना इनको हथियार भेजेगी तो कोई ह्यूमन राइट कैवियट्स नहीं आएंगे उसके साथ कि ये भी करें, आप वो भी करें, डेमोक्रेसी ना करें, इनका कत्ल ना करें, उनका कत्ल ना करें. यू नो, चाइना तो कहेगा कि भाई हम डिस्काउंट पे तुम्हारा कत्ल करवा देंगे. किसको कत्ल करवाना है बताए, विल डू इट एट अ डिस्काउंट. तो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम ना कि ह्यूमन राइट्स के मतलब प्री कंडीशंस, पोस्ट कंडीशंस नहीं होते, तो दे विल फाइंड इट इजी टू डू बिजनेस विद चाइना. लेकिन लोगों का कहना है, एनालिस्ट का, कि विल चाइना बी एबल टू प्रोवाइड a qualitative edge in weapons to Saudi Arabia? Yes. And the answer is no. And if the answer is no, then Saudi Arabia will still want to continue to buy from the US. दूसरी चीज ये है कि जिस तरह से इंडिया फंसा हुआ है रशिया के डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में, उस तरह से सऊदी अरेबिया अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर में फंसा हुआ है. इट्स लाइक सेइंग कि भाई आपने एप्पल का लैपटॉप खरीद लिया, आपने एप्पल की घड़ी खरीद ली, फिर क्या आप जाके गैलेक्सी फोन खरीदेंगे? इंतहाई बेवकूफी हो जाएगी ना.
suddenly you will have systems which are not in sync. तो Hmm. एक बार आप खरीद लिए एप्पल के दो चीजें, तो द थर्ड इट इज ऑटोमेटिक, देयर नो नीड टू थिंक अबाउट इट, यू विल जस्ट गो एंड बाय. आपके पावर कॉर्ड्स भी सिमिलर हो जाते हैं, फिर ऑटोमेटिक सिंक हो जाता है डेटा वगैरह. सो एंड वंस यू गेट एम्बेडेड इनटू इट, एप्पल, मेरी बच्ची कहती थी, once you go Apple then you will not turn towards Dell from hell, कहती थी वो. हालांकि वो छोटी बच्ची फोर्थ फिफ्थ ग्रेड से कहती थी, अब्बा आई डोंट वांट डेल फ्रॉम हेल, आई वांट एप्पल. तो इट इज लाइक दैट. अमेरिका की जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी हेविली इन्वेस्टेड भी है सऊदी अरेबिया, काफी डिपेंडेंट भी है. सो I don't know how this is going to go. लेकिन ऑप्टिक्स में they are trying to send the message to Washington कि we have other alternatives, we have other options. सऊदी अरेबिया ने पहले भी यूरोपियन से हथियार वगैरह लेने की कोशिश की है इन द पास्ट, बट जो हेवी वेपनरी है उनकी, दे आर स्टिल अमेरिका रिलेटेड. अमेरिका सी सऊदी जो डिपेंडेंसी है अमेरिका की इतनी हद तक है कि मैं एक प्रोग्राम रन करता हूँ फॉरेन पॉलिसी का स्टेट डिपार्टमेंट के लिए. जब मैं लोगों को ट्रेन करता हूँ, सारी दुनिया से लेकर आता हूँ समर में और विंटर में स्कॉलर्स ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी. अमेरिका के खर्चे पे वो यहाँ आते हैं, 6-7 हफ्ते रहते हैं मेरे साथ, फिर मैं उनको ट्रेन करता हूँ, क्लासेस वगैरह पढ़ाते हैं. तो उसमें हम कई स्पीकर्स को बुलाते हैं, तकरीबन 100 स्पीकर्स आते हैं स्पीक. तो हम एक मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर को भी बुलाते हैं जो बेसिकली पेट्रियट मिसाइल सिस्टम्स वगैरह बेचता है, वो टेक्सास में बेस्ड है वो. तो मैं उससे बातें कर रहा था, तो वो बता रहा था मुझे कि उन्होंने पेट्रियट मिसाइल सिस्टम्स इंस्टॉल किए, बेचे सऊदी अरेबिया को और यमन के बॉर्डर के करीब. एंड ही सेज कि वो सीख ही नहीं रहे इस्तेमाल करना. तो ही सेज कि मैं और मेरी स्टाफ अभी भी मॉनिटर कर रही है. तो हमने ना सिर्फ उनको बेचे हैं हथियार, वी आर एक्चुअली ऑपरेटिंग द सिस्टम्स. तो हाँ, वो कह रहे थे कि बहुत ही अजीब चीजें हो रही थी वहां पे. बेदुइन जो है वो डेजर्ट में जाके रहने का बड़ा शौक है उनको, 2-2 3-3 दिन वो अपनी टेंट लेके चले जाते हैं. तो बच्चे ड्रोन्स से खेल रहे हैं, वो बच्चों के ड्रोन्स पे वो वो 400-500 का ड्रोन है, वो उसके खिलाफ ये 5 मिलियन की मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं. because they are not able to follow the systems and detect कि भाई ये enemy drone है या बच्चों के खिलौने का ड्रोन है. 3-4 मिसाइल वेस्ट हो गए. तो ये सेड कि मैं अपने बंदों को भेजा हूँ वहां पे कॉन्ट्रैक्ट रीडिजाइन करके कि सो यूएस के फॉर्मर मरीन्स, यूएस फॉर्मर रिटायर्ड सोल्जर्स वगैरह जो होते हैं ना, 6 साल 7 साल जो काम करके आके रिटायर होके फिर वो प्राइवेट सिक्योरिटी में चले जाते हैं, तो वो सारे के सारे प्राइवेट सिक्योरिटी वाले मेंटेन करते हैं इनका इंफ्रास्ट्रक्चर. सो इतना ज्यादा एम्बेडेड है, मुझे नहीं लगता कि आसानी से सऊदी अरेबिया अमेरिका के डिफेंस चुंगल से बाहर निकल सकता है. बट दे कैन डू थिंग्स लाइक से 2 साल तक वो हथियार ना खरीदे अमेरिका से, और छोटे मोटे जो चीजें हैं, हैंड गन्स, इस तरह की चीजें, सप्लाईज, टेंट्स, दूसरे चीजें जो है जो हैवी इंजीनियरिंग बेस्ड नहीं है, वो सारी चीजें इट कैन रीडायरेक्ट इट्स परचेजिंग टुवर्ड्स चाइना. दूसरी चीज ये है, आपको याद होगा कि इस बार के डिस्कशंस में ज्यादा सुनने में नहीं आ रहा, लेकिन लास्ट ईयर चाइना और सऊदी अरेबिया ने युआन ट्रेड के बारे में भी काफी बात की थी. कोशिश की रही कि वी आर गोइंग टू हैव ए युआन बेस्ड ट्रेड. तो मुझे लगता है कि इट इज क्वाइट पॉसिबल कि सऊदी अरेबिया में डिवर्सिफाई इट्स फॉरेन करेंसी रिजर्व जो होते हैं, सिवाय डॉलर्स में रखने के बजाय दे माइट. अब आपको पता होगा कि सऊदी रियाल इज एंकर्ड ऑन द यूएस डॉलर. वो 3.75 पे फिक्स्ड है शायद मेरे ख्याल से, राइट. तो अगर डॉलर ऊपर जाता है तो रियाल भी ऊपर जाता है, तो दे स्टे पैरेलल, मतलब ऊपर नीचे. तो इतना तो सऊदी अरेबिया इज लाइक पॉलिटिकल इकोनॉमी वाइज उतना ज्यादा एंगेज्ड है अमेरिका से. So it's not going to be easy, but अगर अमेरिका इसी तरह सऊदी अरेबिया को ट्रीट करते रहेगा तो सऊदी अरेबिया को कोई चारा ही नहीं है बट टू टर्न टुवर्ड्स चाइना. और एक चीज इंटरेस्टिंग चीज ये है, अभी उनके ऑयल मिनिस्टर का बयान आ रहा था सऊदी अरेबिया के कि उनके जो रेवेन्यूज, ऑयल रेवेन्यूज डबल हो गए इस साल. Yes. तो
they have made what $220 billion उनके revenues हैं, which means they have a lot of disposable income to buy things. वो या तो वो खरीद भी सकते हैं या इंडिया चाइना में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं वो extra money. So Saudi Arabia is sitting in a very good position right now, and मुझे लगता है कि they are using this opportunity, जी की जो visit है जी जिनपिंग की, to send some very choice messaging to Washington. सर ये और आप क्या समझते हैं अमेरिका का क्या प्रॉब्लम है व्हेन इट कम्स टू यमन में? वो वहां से निकल के बाइडेन साहब आए, जो यूएई है उसने उनको आई थिंक F-35 अमेरिकन ने देने थे, वो ना दिए, वो राफेल लेने वहां चले गए। फिर यूएई पे हमले वगैरह भी हुए। तो आप क्या समझते हैं, ये सिर्फ जमाल खशोगी का मसला है, दी सऊदी स्टेप बैक फ्रॉम दीज यूएई सऊदी अरेबिया? हालांकि यूएई के साथ तो चलो I2U2 वगैरह है, लेकिन ये सिर्फ जमाल खशोगी है, या क्या आप समझते हैं कि the American list is long when it comes to the demands from these countries? आपने यूएई का जिक्र किया, यूएई के लिए भी एम्बेसडर कंफर्म नहीं है। दिस इज आल्सो वन ऑफ द कंट्रीज। मैं देखा था इतना क्लोज है ये, I2U2 भी इनके साथ चल रहा है, बट देयर इज नो एम्बेसडर कंफर्म इवन टू यूएई। हालांकि एक जमाने में कहते थे कि उतैबा जो यूएई के एम्बेसडर थे यूएस के लिए, ही वाज कंसीडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मेन इन वाशिंगटन डीसी। यस। आप वहाँ जहाँ पे CSIS है ना, थिंक टैंक, आप कभी CSIS की जो लॉबी में जो इनके कॉन्फ्रेंस रूम्स में बैठ के देखें, उतैबा की तस्वीरें नजर आएंगी आपको वहां पर, क्योंकि उन्होंने इतने पैसे दिए हैं अमेरिकन थिंक टैंक्स को कि दे हैव लिटरली बॉट मेनी ऑफ अमेरिकन थिंक टैंक्स इन वाशिंगटन डीसी, हेवीली इन्वेस्टेड। तो देखिए अमेरिका में बहुत ही, इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड political system, or even though on paper it is not very corrupt, it is also very corrupt in other ways. तो अब मिसाल पे ये है कि because there is an election process, अमेरिका इतने बातें करता है, it is also a very religious country. वेस्टर्न ममालिकों में, क्रिश्चियन कंट्रीज में अमेरिका से ज्यादा रिलीजियस कोई मुल्क नहीं है। आपको पता है अमेरिका इज मोर रिलीजियस देन सऊदी अरेबिया in terms of religious beliefs वगैरह। America is more religious. 65 या 60% Americans actually believe in a God. It could be from different religion, but they believe in God. The number of Americans who attend religious places, church या masjid या temple या synagogue वगैरह, is very high compared to Europeans वगैरह। तो मोरालिटी का बड़ा डिस्कशन होता है हमारी पॉलिटिक्स में। यू हैव टू हैव अ मॉरल एजेंडा, क्या है आपका। तो पॉलिटिशियंस का चक्कर ऐसा है, करप्ट भी है, फिर ऊपर से मोरालिटी दिखाने का भी बड़ा शौक होता है। तो इसलिए जैसा जब बाइडेन से पूछा गया था कि भाई खशोगी को मार डाला एनबीएस, आप क्या करेंगे, तो उन्होंने बड़े धूमधाम से कह दिया कि आई विल मेक सऊदी अरेबिया ए पराया स्टेट। हाँ, लेकिन फिर इजराइल ने मारा एक अमेरिकन जर्नलिस्ट को, तो इन्होंने कुछ बातें अभी तक मुंह नहीं खुला उनका, 1 साल हो गया। तो कहाँ की मोरालिटी रही, हिपोक्रेसी तो सबको नजर आ रही है। सो द प्रॉब्लम इज के आइदर दे शुड प्रिवेंट, जैसा कि इंडिया की पोजीशन ऑन यूक्रेन इज सो क्लियर, ये दे आर नॉट सेइंग कि ये हमारी मॉरल पोजीशन है, ये कह रहे हैं कि इट इज अ रियलिस्टिक पोजीशन। प्लस जो इंडिया की मॉरल पोजीशन ये है कि हमारी मोरालिटी इज टू सर्व आवर सिटीजन्स, और हम वही कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका को चाहिए कि दे वांट टू हैव इट बोथ वेज। दे वांट टू से दैट वी आर डूइंग व्हाट इज मॉरली राइट, एंड दे वांट टू डू व्हाट इज नॉट नेसेसरीली मॉरली राइट। दोनों चीज चाहते हैं ना। ये शुरू से प्रॉब्लम रहा है अमेरिका का, वांटिंग टू बी अ सिटी ऑन द हिल। वी आर ए सिटी ऑन द हिल का कॉन्सेप्ट तो आपने सुना होगा, सारी दुनिया हमको देखे, सारी दुनिया चाहे कि वो अमेरिका की तरह बने, लेकिन ये जानते हुए कि कोई दूसरा मुल्क अमेरिका की तरह नहीं बन सकता। तो नॉट ओनली आर यू ए सिटी ऑन द हिल, बट अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म है कि अमेरिका के अलावा और कोई अमेरिका नहीं बन सकता। बट उस जमाने में आप रेसिस्ट भी थे, उस जमाने में आप नेटिव अमेरिकन का जेनोसाइड कर रहे थे इस मुल्क में, उस जमाने में और कई अजाब थे, मतलब सेक्सिज्म वगैरह के क्वाइट अपेरेंट था अमेरिका में, राइट। So America wants to have it both ways. It wants to behave in a manner which is
driven by material interests, but it also wants to appear to be acting morally. ये एक चक्कर है, तो उसका वजह से ये इनकंसिस्टेंसी जो लोग चिढ़ते हैं अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की हिपोक्रेसी की वजह से, वो ये टेंडेंसी की वजह से, और ये मतलब अमेरिकन आर अवेयर ऑफ इट. आपको पता है हर यूनिवर्सिटी की हर अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी क्लास में पहले दिन से ये डिस्कशन शुरू हो जाता कि अमेरिकन इंटरेस्ट और अमेरिकन मोरालिटी में जो डाइवर्जेंस है, that is the most important element of American foreign policy. उस पे मुसलसिल हर मेजर पॉलिसी डिसीजन पे डिबेट होता है. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. ये ऑब्वियसली ये विद एवरी पासिंग डे ये अमेरिका के लिए चैलेंज बढ़ता जा रहा है कि अमेरिका जो है वो दुनिया के साथ अब वो ममालिक जो उनके पार्टनर हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, उनके साथ इंगेज भी करना है. ह्यूमन राइट्स पे एक स्टेप पीछे भी है, चाइनीज़ भी असर्ट कर रहे हैं, इंडियंस अपना एक पॉइंट रख रहे हैं. और लेकिन लेट्स सी, देखते हैं कि ये प्रेसिडेंट बाइडन जो है ये कंफर्मेशंस ले सकते हैं कि नहीं ले सकते. और दूसरा जो चाइना के जो सदर हैं उनका आउटकम क्या आता है सऊदी अरब के इस विज़िट से. ऑब्वियसली वेरी इंटरेस्टिंग विज़िट है. कुछ 1 साल के बाद शी जिनपिंग पहुंचे हैं और ऑब्वियसली वेलकम से पता चलेगा. एंड द अमेरिकन्स आर ऑब्वियसली लुकिंग वेरी केयरफुली कि शी जिनपिंग क्या. जी, कोविड के बाद दिस इज हिज थर्ड इंटरनेशनल विजिट, और जो पहले 2 विजिट्स हुए हैं, एक तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की थी, यस, समरकंद की विजिट, और फिर बाली की विजिट थी, राइट, वेयर ही मेट बाइडेन से मुलाकात हुई. एंड सो दिस इज हिज थर्ड इम्पोर्टेंट मीटिंग. तो समरकंद तो इट वाज लाइक अ होम गेम ना उनके लिए. तो आप यूं कह सकते हैं कि अमेरिका के बाद जी जिनपिंग thinks Saudi Arabia is the next most important country to meet. ट्रू. यूरोप का दौरा नहीं लगाया, यूरोप का दौरा नहीं लगाया, रशिया क्या नहीं हुआ, सऊदी अरेबिया का. मेरे ख्याल से उसको उम्रा करवा दें, वो शाम में मजा आ जाएगा. सीक्रेटली ले जाए रात को. बिल्कुल सही है. थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान साहब. सर, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू सर. बहुत शुक्रिया. Thank you very much.